So yeah, as you can see, I am still not fine. But yeah, I'm at least grateful that my voice is back. Since last 2 days, it was really bad. Hello everyone, this is Cal, your pal, and today I'm going to discuss about summer camps, activities for summer vacations, education system. आज हिंदी में बात करते हैं. What do you say? हाँ? ताकि this video reaches a lot of people everywhere in India, because majority of people will understand Hindi. तो आज हिंदी में बात करते हैं. For people who do not understand Hindi language, I'll definitely put subtitles. ठीक है? So पहली बात तो yes, it's been like 1.5 weeks, and yeah, my fever is gone, but this cold and cough, it's consistent and it's really irritating. Thankfully my voice is back, because since last 2 days, when I decided to take a break, it was almost like I could not speak. I had to really, I didn't want to put too much of strain. So I just decided, enough is enough. I'm just gonna take a break and just chill and watch some movies and just sleep properly, because I was not even sleeping last week, like in spite of taking such heavy medicines. Can you imagine? So I just decided to just completely sleep, properly. Just took that cough syrup and everything, and that's it. I'm still doing that gargle with warm salty water. I think that's really helping. I just hope so. Yeah, if you're watching this, please send me some healing vibes and prayers. No one likes to fall sick. It's not just for us, but people who have like a proper routine. Like, I do not like to be sick, because it affects my work routine, and the whole routine is disturbed, because I like to be in control. And when you fall sick, it's like the environment and the universe is like, okay, I'll just like, just kind of disturb your everyday routine. And it is, I think, because of the pollution in Mumbai, it's too much, I think so. So it's not just Delhi. Please, people who have too many cars and all, please stop using it. यार क्या environment का थोड़ा तो सोचो. So let's begin this video. So एक बात बताओ मुझे, NDTV पे कुछ दिन पहले, I think it was last week, he had this 1 hour program, at least for 2 days, where he discusses, in prime time. तो उसमें education system के बारे में and क्या problems है, how all these politicians, इनके schools हैं usually, और यूनिफॉर्म से लेकर जूते कौन से बच्चे पहनेंगे, वो कोट कौन सा पहनेंगे गर्मी में भी, आई थिंक स्वेटर कौन सा पहनेंगे, वो बटन पे कौन सा स्कूल का वो ब्रांड रहेगा, या जो भी है. बेसिकली इट्स ऑल लाइक अ जुमला, इट्स ऑल लाइक अ फसाड, कि हम लोग आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बट द क्वालिटी इज डिटोरिएटिंग. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स तो आप देखो, इकोनॉमी में, सी आई एम नॉट, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट समवन हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स वेल, बट एक चीज तो मुझे पता है कि not everyone earns that much, and the lifestyle बहुत affected है. Like हर किसी की lifestyle, if you see, even the people who are at really high positions, like a VP of some company or some manager, तो इनकी lifestyle तो affect हो रही है, because इतना काम है. अब बाकी जो लोग हैं, जो एकदम ही गरीब है या एकदम ही मिडिल क्लास है, 2 बच्चे भी या 1 बच्चा भी अगर है घर पे, तो वो लोग, हर कोई चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में जाए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात ठीक नहीं है.
दिल्ली में कुछ स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है अपेरेंटली, गवर्नमेंट स्कूल्स में। मैं तो वहाँ गई नहीं, बट आई सॉ दैट AAP हैज़ डन सम गुड वर्क। अगर नहीं किया है तो लेट मी नो, बट मैंने तो उनका वो न्यूज़ रिपोर्ट जो वो लोग ने आर्टिकल खुद ही पता नहीं उनके पेज पे मैंने देखा था। तो पहली बात तो ये चीज़ आप समझ लो कि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या पहले की गवर्नमेंट्स हो, आप ये नहीं बोल सकते कि किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, हर पूरा सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है, एंड इसके लिए वी नीड गुड लीडर्स। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस एजुकेशन सिस्टम, तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल बहुत ही बदतर है। तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, या पहले तो कॉन्वेंट स्कूल, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, ओके, एंड आई थिंक इट वाज रियली अ गुड स्कूल। हालांकि आई डिड नॉट हैव द बेस्ट टाइम इन स्कूल, बट एटलीस्ट आई एम श्योर अभी के जो बच्चे फेस कर रहे हैं, मैं उस चीज से आई हैव नॉट गॉन थ्रू। हाँ, तो मेरे टाइम में 80s और 90s के बच्चे फिर भी आई थिंक हम लोगों ने अच्छा कुछ सीखा है। जो बाद में जो होने लगा ना, लेटर ऑन जो जनरेशंस आई है या अभी स्पेशली, इट्स ऑल डिटीरियोरेटिंग। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी का बच्चा कैसे वो प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन का सपना भी देख सकता है, बिकॉज ये लोग हर बार फीस बढ़ा देते हैं। फीस की तो प्रॉब्लम है ही, और हर्ड मेंटालिटी जो बोलते हैं, लाइक हर कोई बस आपको एक, जैसे एडवर्टाइजिंग में कैसे होता है ना कि आपको एक पैकेज बता देते हैं वो लोग, हर कोई अपना एड लगाए हुए कि नहीं हमारा प्रोडक्ट लो, हम ये करेंगे, हम ये ये करके बताएंगे। एक सिंपल सा क्रीम का अगर एड देखें तो एवरीवन इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेल यू कि हमारे स्कूल में आओ, हम ये करेंगे, ये बड़ी बड़ी चीजें, बट एक्चुअली क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। आई टेल यू, मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं बताती हूँ। आप लोग बोलेंगे नहीं हमारे स्कूल में तो ये सब है, ICSE CBSE में बड़े बड़े वो पावर पॉइंट टाइप क्या है वो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन और वो पावर पॉइंट बिग प्रोजेक्टर में बताते हैं, सिखाते हैं, और बुक्स भी लेके जाने की जरूरत नहीं होती है, एक्टिविटीज के लिए लेके जाते हैं, ये कंपटीशन होता है, वो प्रोजेक्ट होता है, और समर्स में भी स्कूल रहेगा, समर कैंप रहेगा, आपके आस पड़ोस में भी समर कैंप रहेगा। बस कमर्शलाइजेशन इसमें डालो बच्चों को, वो सीखेंगे, और हर पेरेंट्स वही कर रहे हैं। ये कोई सोच नहीं रहा है या ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि क्यों बढ़ रही है फीस। इस चीज को रोकना नहीं चाहिए? क्या वो क्वालिटी मिल रही है? क्या वो उस मेरे बिल्डिंग में इतने बच्चे अगर जाते हैं इस चीज के लिए, तो मुझे भी भेजना चाहिए क्या समर कैंप के लिए? सो द मेन थिंग इज कि पहले तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ठीक करो, ठीक है? एजुकेशन क्वालिटी ही नहीं, टीचर्स बोलो, वहाँ पे कैसा बर्ताव होता है बच्चों के साथ, इम्पोर्टेंट है। और स्टाफ इंक्रीज करो, उनकी पगार बढ़ाओ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बैठने की जगह बोलो, या फिर किताबें, अच्छी बुक्स, लाइब्रेरी, वहाँ पे अच्छा ग्राउंड, स्पोर्ट्स के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में, लड़का और लड़की के बीच, टू हैव दैट हेल्दी कॉन्वर्जेशन एंड दैट हेल्दी अपब्रिंगिंग। और उसके बाद आप अगर बाकी स्कूल्स की बात करें, जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में भी एक और चीज़ है कि एक बच्चे की कैपेबिलिटी या उसकी इंटेलिजेंस लेवल सिर्फ इतने एग्जाम्स में मार्क्स आने से ही पीपल आर मेजरिंग, या तो फिर वो एवरेज स्टूडेंट है, या तो डिस्टिंक्शन में आता है तो वो या ग्रेड्स A+ ही मिल रहे हैं, तो ही इज लाइक अ रियली इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बच्चों को भी इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल, आधे से ज्यादा टाइम तो मुझे लगता है पेरेंट्स ही इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि वो लोग जैसे मैंने कहा
कि मेरे पड़ोसी का बच्चा वहां जा रहा है तो मैं भी भेजूंगी अपने बच्चे को, वो चेस खेल रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को भेजूंगी। अरे आप बच्चे से तो पूछो, और एक चीज, उसकी पढ़ाई के साथ साथ वो म्यूजिक लेसन्स ले रहा है, वो सिंगिंग लेसन्स ले रहा है, वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर रहा है, फिर वो घर आके पढ़ाई कब करेगा और वो आराम कब करेगा? बहुत से पेरेंट्स ये नहीं समझते कि बच्चे को कुछ नहीं करना भी जरूरी है। नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्पेशली जब वेकेशन रहता है तभी आप प्लीज उनको एक्टिविटी में मत भेजो। ये जो समर कैंप्स का जुमला है वो बंद करो। पहले तो इन लोगों क्या है, पैसे कमाने हैं। आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वेकेशन का मीनिंग ही वही होता है कि आपके बच्चे को वो टाइम मिले रिलैक्स करने के लिए, रिजुविनेट होने के लिए, टू बी बेटर एट द नेक्स्ट क्लास। आप उनको पहले आप याद के आप इफ यू आर अ पेरेंट वॉचिंग माई वीडियो और इवन इफ यू आर नॉट, आपके कोई आसपास ऐसे लोग होंगे तो आप सोचो, आपके समर वेकेशंस में आप नेटिव प्लेस जाते थे या ट्रैवल करते थे या फिर कुछ नहीं करते थे, बस खेलते थे, कूदते थे और फिर रात को सो जाते थे, आइसक्रीम खाने जाएंगे, बुक्स रीड करेंगे, थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे और साइकिल चलाएंगे, सुबह जल्दी उठ के क्रिकेट खेलेंगे। दैट इज फाइन। जब आप आपके बच्चे को भी एक्टिविटीज में भेजते हैं ना, तो होता क्या है कि आपके बच्चे को इमेजिनेशन करने का मौका नहीं मिलता या फिर उनके हिसाब से चीजों को करने का मौका नहीं मिलता। ये सब एक्टिविटीज में या फिर जब स्कूल्स में भी हर कोई एक जैसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो बच्चा किस चीज में अच्छा है, वो किस चीज में टैलेंटेड है या फिर नहीं भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, मुझे उससे प्रॉब्लम है बचपन में। बिकॉज आप बच्चे को इतना सारा प्रेशर दे रहे हैं, हर चीज में उसे अच्छा होना है। क्यों? लेट दैट किड बी अ किड। अभी जैसे प्री स्कूल की भी बात है, अभी तो शायद दे हैव इंक्रीज द किंडरगार्टन केजी क्लास का एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी उसके पहले क्या करते हैं, प्ले स्कूल में भेजेंगे। माई 3-year-old नेफ्यू इज नाउ गोइंग फॉर समर कैंप। क्या करेंगे उधर? माँ बाप को प्लीज ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पैसे होने से, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, तो आप सब जगह पे उनको मत भेजो। What is important है कि आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि nowadays a lot of parents are working, both the parents are working, but if you decide to have kids then you have to spend time with them, otherwise please don't have kids। ठीक है? दोनों को, in fact दोनों parents को, they both have to take a lot of interest, spend time with them, plan activities with them, don't just उनको बस चीजें खरीद के मत दो, कि मांग रहा है तो ये चाहिए वो चाहिए। मॉल्स में जाना, हमारे टाइम में तो मॉल्स भी नहीं थे इतने, बट कभी कभी ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अब जैसा कल्चर है अभी, नाउ ऑफ कोर्स गैजेट्स एंड टैबलेट एंड कंप्यूटर एंड मॉल कल्चर इज देयर, यू कैन नॉट कीप देम कंप्लीटली अवे फ्रॉम दैट। बट बीचेस भी तो है, पार्क्स भी तो है एंड हैंगिंग गार्डन भी तो है, आपका नेटिव प्लेस है। इफ यू कैन अफोर्ड, व्हाई नॉट टेक देम टू ट्रैवल समवेयर, लेट देम experience that amazing life, maybe the rural life or something new, or let them just have fun, jump around and all। आपको ये चीज के लिए पैसे देने की क्यों जरूरत है कि वो बाकी बच्चों के साथ भी वो एक्टिविटीज करे और आपको इतने पैसे देने पड़े? क्यों? द रीजन आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स कि मैं अभी तक, इफ आई एम सर्वाइविंग इन दिस इंडस्ट्री या फिर I started my YouTube channel, it is all thanks to my parents, my amazing teachers, especially
My first teacher, Martha ma'am. Amazing friends, amazing. Some of them are my mentors also. And of course, I also have that much confidence. But I'm just saying कि मेरे पर वो कभी था नहीं pressure. I was competitive. लेकिन my parents always said, it's okay. It's okay to come second. It's okay to come fourth. There is always a next time. आजकल क्या होता है, पेरेंट्स क्या करेंगे, शर्मा जी का बेटा Have you heard that? You know, like शर्मा जी का बेटा इतना स्कोर लेके आया 90%. नहीं, आजकल तो वो भी कम है. शर्मा जी का बेटा 95% लेके आया, तुम सिर्फ 89% लेके आए हो. This comparison, it is there. I see that everywhere. You know, it's seriously sad. Please, मत करो ऐसा. Don't treat your child like some commodity. Okay? आपके खुद की कंपटीशन लेवल के लिए नहीं है वो, just to satisfy your ego and just to show off around in your society or among your friends. आपके बच्चे इस चीज के लिए नहीं है. प्लीज, अगर आपको इतना है कॉम्पिटिटिवनेस, गो एंड डू समथिंग विथ योर लाइफ, रादर देन ये थोपने को अपने बच्चों पे कि नहीं ये करना है, वो करना है. देयर आर दीज थिंग्स कि ये एक्टिविटीज में आपको इमेजिन करने सिखाएंगे, आपको ऐसे ड्रॉ करने सिखाएंगे, आर्ट क्लास, टू बी स्पिरिचुअल. आई एम लाइक, बच्चे हैं वो उनके माइंड्स अभी डेवलप हो रहे हैं. लेट मी टेल यू, आई इमेजिन सिंस आई वाज अ किड एंड आई राइट poems, and I started writing diary, my poems, everything since I was a teenager or maybe even before that. तो ये सब चीज, if you are a creative person, वो सब बचपन से रहता है, भगवान ने वो टैलेंट दिया होता है. ये सब चीजें आपको कोई सिखा नहीं सकता है. Yes, you can improve that with skills later on by taking some filmmaking course या writing workshop, ये वो. But this is your hidden talent, वो है. मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज वो रैट रेस में से निकलिए. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन आर्टिस्ट, मैं वो रैट रेस में नहीं हूँ. मैं जो भी छोटा बहुत करती हूँ ना, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. एंड प्लीज आपके बच्चों को भी यही सिखाइए बचपन से. वो बड़ा होके क्या बनेगा, दैट विल डिपेंड ऑन हिज एप्टीट्यूड, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, इंजीनियर, डॉक्टर, even if he wants to take some creative jobs, or he wants to be a CA, or he wants to just start something on his own, startup खोलना है, ठीक है, आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए एज पेरेंट्स. बट ये सब बाद में की बात है. अभी इतने यंग माइंड्स पे प्रेशर मत डालो प्लीज. आई थिंक एन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. लाइक देयर सो मेनी थिंग्स दैट स्कूल्स डोंट टीच. आई थिंक, I don't know how it is now, but about gender sensitization, the equality, between men and women, how to be a more amazing and authentic human being. यहाँ पे तो बस किताबें, projects and competitions and activity. I don't know if all our kids are being taught to be amazing individuals. Because what is important is कि आपके बच्चे, first of all, they have to be unique the way they are. Unique होना मतलब क्या? To be yourself. आपके हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होगा. आपका बच्चा सेंसिटिव है, इमोशनल है, क्रिएटिव है, या वो मैथ्स में अच्छा है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है. that how you recognize that. उसके अलावा भी मेरे हिसाब से बच्चों को बच्चा रहने देना चाहिए. प्लीज डोंट बम्बार्ड देयर यंग माइंड्स विद टू मच ऑफ एक्टिविटी. ऑलरेडी हमारे यंग जनरेशन जो है, बिकॉज ऑफ टैबलेट्स एंड कंप्यूटर एंड सो मच ऑफ एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, they are not able to rest too much. Their minds are constantly working. Sometimes it is important to not do anything also. Please understand. अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी चीज है. Let them just relax and just like, I'm tired, mama. Okay, beta, just relax.
दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो, कुछ नहीं करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई होप every parent understands that. Teachers need to invent new methods of trying to come up with innovation. You know, हमारे स्कूल में एक एटलीस्ट टीचर ऐसे रहेंगे जो who will try to come up with something new. Like once in my college, one of my favorite teachers, she went and she decided कि हम बीच पे, हमारे कॉलेज के सामने ही बीच था, so she was like, beach pe I'm going to teach you guys, let's take a class there. I'm like, wow, who doesn't like such teachers? Sometimes there'll be teachers who will be using some personal stories and, you know, try to make it interesting. So teachers का भी, you know, वो एक efforts होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पैसे मिल रहे करके बस पगार मिल रही है करके आके पढ़ा के जाए. No, every person I think has to take interest in you know, a child's education. जैसे parents को लेना चाहिए, वैसे ही teachers also have to be little enthusiastic. Don't just treat this as, you know, कि हाँ काम के लिए बस पगार के लिए मैं आ रही हूँ. और एक चीज I'll say, you know, as someone who regrets not learning Bharatnatyam at a young age, I do want to learn Kathak. I've mentioned this in one of the videos. तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आपके पढ़ाई के साथ साथ ना एक कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सिखाना बच्चे को जो उन्हें अच्छी लगती हो. लाइक अगर इफ़ ही इज़ गुड एट ड्राइंग तो क्लास मत पहले से कराओ, बट उनको बस एक पेपर शीट, यू नो, दे दो, कलर्स दे दो, खरीदो ये सब चीज़ें, and let them draw whatever they want to. Imagination उनकी और, you know, grow होगी इस चीज़ से. If they want to learn a musical instrument, if you can afford it, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, you know, क्लास के लिए भेज दो. तो एक उनके पास एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रहेगा एक चीज़. और एंड इन द फ्यूचर अगर सपोजिंग दे वांट टू टेक अ क्रिएटिव जॉब इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल 9 to 5 जॉब, they can always have something to fall back on, you know, because जो training होती है ना, like especially for classical dance, classical music, that training will always help them. तो उन्हें अगर क्रिकेट अच्छा लगता है, खेलने दो क्रिकेट, 1-2 घंटा खेलने दो, ऐसे धूप वो सब छोड़ो, let them play. बैडमिंटन अच्छा लगता है, let them play for 1 hour. एटलीस्ट वो टैबलेट लेके नहीं बैठे हैं ना घर पे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, या टीवी के सामने नहीं बैठे हैं. ये बार बार रोक टोक मत करो, बार बार दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करो. फॉर गॉड सेक, आपकी कंपटीशन आपके पास रखो. एंड अगर फेल हो भी गया तो ठीक है यार, वापस वो बैठ जाएगा एग्जाम में. कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचना. दैट इज लाइक इंडियन सोसाइटी का तो ये बहुत ज्यादा है, लोग क्या कहेंगे. शर्मा जी का बेटा उसने इतने कम मार्क्स लाए. अरे यार छोड़ो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो. प्लीज सपोर्ट योर किड्स, यू नो, उनके टैलेंट को सपोर्ट करो, उन्हें ज्यादा प्रेशराइज मत करो. एवरीथिंग विल बी फाइन. हर्ड मेंटालिटी फॉलो मत करो, जो वो लोग कर रहे हैं मैं भी करूंगी. औरतों को तो ज्यादा रहता है ये, आदमियों से ज्यादा. मेरा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में ही जाएगा या मेरा बच्चा ICSE स्कूल में जाएगा. क्यों? नॉर्मल स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में भी बेचारे पढ़ के इतना स्कोर कर लेते हैं. हाँ, डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं. अनदर थिंग, अगर आपको ऐसे लगता है कि यू नो फीस बहुत ज्यादा बढ़ रही है या कुछ भी ये लोग ज्यादा आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज लॉ फॉर एवरीथिंग. तो सबकी सिग्नेचर्स वगैरह लो, पेटिशंस हैं आजकल, साइन करते हैं और जाओ और यू नो लाइक एकजुट होके ट्राई टू नेल देम. बिकॉज हर बार यू नो ये लोग क्या सोचते हैं कि नहीं क्या करेंगे ये लोग पेरेंट्स, यू नो, क्यों अपने बच्चों का थोड़ा सा साल बर्बाद करेंगे. लेकिन ऐसा अगर आप सोचेंगे तो देन ऑफ कोर्स फिर आपको फीस देनी पड़ेगी हर साल, इनकी मनमानी चलेगी. और एक चीज, आपके पास मोबाइल फोन्स है आजकल, ठीक है, मीडिया है, ऐसे कैमरा सामने रखो और बोलो. हाँ आप बोलो, या यू कैन ऑलवेज थ्रेटन देम. इट्स नॉट अबाउट थ्रेटनिंग, बिकॉज ये लोग गलत अगर कर रहे हैं तो बताना जरूरी है. मीडिया में भेजो, NDTV वगैरह को भेजो,
I'm sure there is a way for everything, you know. Where there is a will, there is a way. तो इंडिया को अगर आगे बढ़ना होगा, you know, this is not just about India. I'm talking about every country. मैंने तो बाकी स्कूल अब्रॉड वगैरह में भी ऐसे सुना है, कई यूएस वगैरह में भी है ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स, अपना पाकिस्तान वगैरह में अलग प्रॉब्लम्स है. आई एम जस्ट टॉकिंग मेनली अबाउट इंडिया एंड आई होप कि बाकी लोग भी, अगर इफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो वॉचिंग, आई होप तुम लोग समझ सको ये चीज, स्पेशली आजकल के पेरेंट्स. इट्स वेरी फनी दैट यू नो आई एम नॉट अ पेरेंट and I'm making a video on this, but I think I understand these things, or maybe I try to read a little. मेरे आसपास के लोगों से भी, you know, I observe, and that's the reason I thought I have to make this. आज ही कुछ आया था पेपर में भी, you know, I'll show you on in HT. So this is about preschool and कैसे choose करना है. मुझे तो प्ले स्कूल से भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे टाइम में प्ले स्कूल नहीं थे. मुझे तो जल्दी डाल दिया था मॉम ने स्कूल में, केजी क्लास में 2.5 years में ही डाल दिया था, बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मस्ती. नॉट मस्ती एग्जैक्टली, आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट किड, बट आई यूज्ड नॉट लिसन अपेरेंटली. तो या उस टाइम पे ले लेते थे, तो इसलिए मेरा स्कूल भी लाइक जल्दी हो गया था. वंस यू नो द लाइक स्कूल के बाद से आफ्टर 12th एंड ऑल, you know, it's okay when they'll be able to decide ki what kind of field they want to choose and everything. Higher education के लिए वगैरह भेजो आप कहीं और, you know, दूसरे city में या फिर दूसरे countries में if you can afford. That is different. लेकिन स्कूल में इतना ज़्यादा मत करो competition. It's very sad कि you know, एक और चीज़ मुझे बहुत irritate करती है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे फैमिली को यू नो ज़्यादा वैल्यूज़ दिया जाता है, एंड हम बोलते हैं कि नहीं, यू नो, पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बट इट इज़ वेरी सैड कि पैसा, स्टेटस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल पीपल आर गिविंग इम्पोर्टेंस, एंड ये फैमिली सिस्टम में भी हो रहा है. और फिर बच्चे भी वो चीज़ देख रहे हैं, बच्चे यू नो दे आर लुकिंग अप टू यू. तो आप कैसे, वॉट यू स्पीक, द वे यू बिहेव, ये सब चीजें बच्चा देख रहा है. सो बी वेरी केयरफुल कि आप उनको क्या समझा रहे हो, क्या सिखा रहे हो. बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बचपन से यू नो लाइक उनके बचपन से आप प्लीज उन्हें ये मत सिखाओ कि लेटेस्ट आईफोन होना इम्पोर्टेंट है या बड़ी गाड़ी में घूमना इम्पोर्टेंट है. इससे बियॉन्ड ट्राई टू मेक देम मोर ह्यूमन, यू नो, more humane if I'm not wrong. तो let the child be free, you know, एक बाउंड करके मत रखो उन्हें रूल्स से या फिर एक वो जैसे एक्टिविटीज से और कंपटीशन से. let the child just be. It's very important for kids to just be themselves. Like that's what I'm saying ना, हमारे ऊपर ऐसा कभी प्रेशर नहीं था, you know, in spite of me being competitive, because life में आगे तो कितने challenges आएंगे, तो बचपन में at least उनको बच्चा रहने दो. And a lot of kids are having a lot of stress levels also. तो please अगर आप पहले से इतना ज़्यादा stress डालेंगे, the child will have serious problems, okay? Then you have to maybe take them to counselor and all. तो जरा सोच समझ के बड़बड़ करना. Don't nag the child also like too much. I think that's enough guys. I have covered a lot of points. ठीक है, इतना फिर भी मैंने बात कर लिया. I cannot put too much of strain. So that's it from me folks. I hope you like this video, and if you like it, please give it a thumbs up. Please comment below and let me know what is your views on the education system, especially in India. Do you agree with the points? Do you think there is massive reforms which is needed? Do you think that is a competition and all that? बच्चों को थोड़ा बच्चा रहना देना चाहिए, राइट? प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो पेरेंट्स हैं या फिर दे आर लाइक दिस कॉम्पिटिटिव, तो उनके साथ शेयर कीजिए. एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. And I still want to say thank you to all the new subscribers and old subscribers also for sticking around. For people who watch my videos, comment, like, thank you so much. And yes, please send me healing vibes. I don't want to be like any more sick. ये बहुत ज़्यादा हो गया इस बार. So just pray for me.
And if you want to watch my last video, it's somewhere here. Until next time, it's bye bye for me. Take care.